Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important article. The article is the relation between current and drift velocity. This article I have taken from class 12th unit 2 electric current and resistance. This is the most important article. 2 marks का ये आर्टिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. क्या है आर्टिकल? द आर्टिकल इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. द आर्टिकल इज रिलेशन between current and drift velocity. टू मार्क्स का ये आर्टिकल डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं दो टर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. फर्स्ट वन इज करंट एंड द सेकेंड वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो फर्स्ट, व्हाट इज करंट? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे. व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर is called current. क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताई? The time rate of flow of charge through any cross section area of the conductor is called current. It is denoted by the symbol I. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. और I होता क्या आपके पास? Q by T. दोबारा सुने. What is current? The time rate of flow of charge through any cross section area of the conductor is called current. मीन्स कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, दैट इज कॉल्ड करंट. इसको हम I से डिनोट करते हैं, दैट इज Q अपॉन T. Q क्या है यहां पे? चार्ज. और T क्या है यहां पे? टाइम. सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज drift velocity. Drift velocity. Now what is drift velocity? The average velocity with which the free electron get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field, that is called drift velocity. What is the definition of drift velocity? The average velocity with which the
free electron gets drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field applied. क्या बताया मैंने आपको? द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन gets drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field applied. That is the drift velocity. It is denoted by Vd. That is the drift velocity. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसका वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं. What is drift velocity? The average velocity with which the free electron gets drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field applied. It is denoted by Vd. Means ये जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये इस आर्टिकल में आज हम देखेंगे. What is the relation between current and drift velocity? तो स्टार्ट करेंगे अभी इसको. Now come to our topic. What is the relation between current and drift velocity? करंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, I से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से डिनोट करते हैं. तो क्या रिलेशन है इस करंट I में और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd में, ये आज हम देखेंगे. तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या मान रहा हूं, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर से कॉपर वायर हैविंग लेंथ L and uniform area of क्रॉस सेक्शन ए. मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं से कॉपर वायर जिसकी लेंथ है हमारे पास L और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका A. तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एज शोन इन फिगर 1. तो दिस इज द कंडक्टर AB हैविंग द लेंथ इज से L. मैंने यहां पे एक कंडक्टर ले लिया AB जिसकी लेंथ है L और इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है से A. तो मैं मान लिया मैंने एक कंडक्टर जिसकी लेंथ है L से कॉपर वायर and having a uniform area of cross section is say A. Now अगर इस कंडक्टर का
लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा? दैट इज एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज A इंटू L। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, दैट इज द A of the conductor and length L of the conductor। मैं मान लेता हूं let n be the number density of free electron, that is the number of free electron per unit volume of the conductor, per unit volume of the conductor। मैंने मान लिया कि इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय, कितने होंगे? अगर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल नंबर ऑफ इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वो कितना होगा? दैट विल बिकम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय ALN, that is the number of electrons per unit volume into volume of the conductor। कितने होंगे? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मैं यहां पे राइट डाउन कर देता हूं, इज गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। दोबारा समझिए इस कंसेप्ट को। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। तो टोटल कंडक्टर के अंदर कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम? दैट इज n इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दैट इज AL। तो कितने आ गए? AL इंटू L। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। और अगर मैं मान लूं कि E जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो टोटल चार्ज ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर्स कितना हो जाएगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट इज AL इंटू L इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं मान लूं इफ E इज द charge on each electron, then the total charge on all the free electron of the conductor is given by, अगर मैं मान लूं कि E जो है
that is the charge on each electron, then the total charge on all the free electrons of the conductor is given by total number of free electron in the conductor into charge on each electron. तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने हैं हमारे? ALN. नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन? दैट इज E. तो कितना आ गया आपके पास? दैट इज ALNE. दिस इज द टोटल चार्ज ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर. ALNE हमें क्या डिनोट कर रहा है? ये हमें डिनोट कर रहा है टोटल चार्ज ऑन all the free electron of the conductor. ये हमें डिनोट कर रहा है. अब मैं क्या करता हूं, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई करता हूं विद द हेल्प ऑफ बैटरी. लेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the ends of the conductor. Let a constant potential difference say V volt is applied across the free ends of the conductor with the help of battery. मैंने मान लिया कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया एक बैटरी की हेल्प से. तो जब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को हम अप्लाई करेंगे देन व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूव फ्रॉम A टू B. इस बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगी. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड the free electron is to be drifted toward the positive end of the conductor. तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने इसके दोनों एंड्स के ऊपर एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया. कैसे? एक बैटरी को अप्लाई करके. जब इस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को लगाया गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी फ्रॉम A टू B और जो इलेक्ट्रॉन थे वो ड्रिफ्ट करके B टू A. तो लेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस से V वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ बैटरी. तो कितना पोटेंशियल था जो हमने अप्लाई किया? पोटेंशियल V that will become equal to E upon L, where E is the electric field and L is the length of the conductor. अब क्या हुआ? Due to this potential an electric field E is set up across the conductor from A to B.
अब इस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो मैंने अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ए टू बी, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड an electron is drifting toward the positive end of the conductor, means from right to left, under the influence of an external electric field. Applied. क्या बताया मैंने? जब हम एक बैटरी से यहां पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? Electric field is set up from A to B, and due to this electric field, the electron is drifting toward the positive end of the conductor against the electric field. तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, मींस कंडक्टर को क्रॉस करेगा, देन कितना टाइम लेगा? लेट T be the time taken by the conductor, time taken by the electron, drifting electron to cross the conductor. Which is given by T is equal to L upon Vd, where L is the length of the conductor and Vd is the drift velocity. अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन जो B से A की तरफ चल रहा था, it will be drifting from right to left against this electric field. तो कितना टाइम उसने लिया? मान लिया T टाइम उसने लिया B से A की तरफ आने में, तो T is equal to L upon Vd. Now what is L? That is the length of the conductor, and what is V? D, that is the drift velocity of the free electrons. तो ये टाइम उसको लगा. Now what is Q? We know that I is equal to Q by T. This is equation number 1. Put the value of Q and T in equation 1, we get. रखें इसमें वैल्यू. Now what is Q? That is the total charge on all the free electron of the conductor. That is given by A, L and E. This is Q. दोबारा सुने, what is Q? That is the total charge on all the free electron in the conductor. ये मैंने अभी फाइंड आउट किया था, A L N into E. Now what is T? That is L upon Vd. तो I कितना हो गया आपके पास? L से L कटेगा, that is A N E into Vd. Now what is I? That is the current flowing through the conductor. What is A? That is the area of cross section of the conductor. Now what is N? That is the number density of free electron of the conductor. E is the electronic charge and Vd is the drift velocity. Now what is I? That is amount of current flowing through the conductor. Amount of current flowing through the conductor. Now what is A? That is the
area of cross section of the conductor. Now what is N? That is number of free electron per unit volume of the conductor. Now what is E? Now what is E? That is the charge on electron. Now what is Vd? That is the drift velocity of the free electron of the conductor. तो हमें रिलेशन निकालना था, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. तो क्या रिलेशन आया? I that will become equal to ANE into Vd, where I is the amount of current flowing through the conductor, A is the area of cross section of the conductor, N is the number density of free electrons, means the number of free electrons per unit volume of the conductor, E is the charge on each electron, and Vd is the drift velocity of the free electrons of the conductor. So this is the relations between current and drift velocity. 2 मार्क्स का समटाइम्स और बहुत रेयरली ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, बट मेजॉरिटी में ये क्वेश्चंस जो देखा गया है 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। एज इट इज ऐसे ही आपको बोर्ड में लिख के आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम एक रिलेशन को ड्राइव करेंगे, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, लाइक माय वर्क, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra, and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that he or she can also take the advantage of this video and clear her concepts in a simplified way. तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल अगर आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में अगर आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।